Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about neo-criticism, another theory after Russian formalism that is actually derived from Russian formalism. So, in the order to discuss the main tenets of Russian neo-criticism, we must need to know or to revise what is Russian formalism. As we have discussed in the earlier video, that this was the movement that greatly focused on the form and ignored all external elements. External elements may be society, culture, or other socio-economical elements. And they also believed that text is autonomous object. Autonomous object here means to say the object that is complete in itself, and it's full of intrinsic quality. It doesn't need an external aid to get it meaning. So they believed that text is completely independent in the order to make meaning clear. Now, in this video, we will discuss what is neo-criticism, what's background of it, why it emerged, key features, as well as example of it. So let's start. What is new criticism? A school of thought that emphasizes close reading, particularly of poetry, to discover how work of literature function as self-contained or self-referential aesthetic object. They believed on close reading. Here, close reading is an important term that we will define in later. But here, I would like to tell you that this is something that focused on the intrinsic quality, means focusing on the text itself, removing all external content, like removing writer writer's background, as well as the dates that refer to that era. So when student asked to for close reading, they are given a text after removing some dates and the title and the writer's name, and they asked to read only focusing on the qualities that are present in the text, and they're asked to evaluate accordingly. सो इन इन न्यू क्रिटिसिज्म सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने उसकी एक वर्क की सिर्फ इंट्रिंसिक क्वालिटी पे फोकस करना है, जो कि वर्क में खुद भी सेल्फ एक्सप्लेसिट है, ना कि बाहर वाले फैक्टर्स के ऊपर. Now we are going to discuss, as we have already discussed the differentiation between form and content in the previous video. Again, we are here to discuss the same thing, form and content, because this is something that is repetition, that is being repeated from the later theory, from the former theory, Russian formalism. So again, we are going to discuss form and content. Form refers to the formal qualities of the work. Formal features like it may be the structure of a text or plot, or stylistic features like imagery, like poetry, or and so on. On the other hand, what is content? Content refer to the information or the message being presented. Or when we talk in the context of literary theory, it specifically tells us about the story, or we can say it tells us about the biographical background of author, or political or cultural religious aspect. So अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन करें कि फॉर्म क्या है और कंटेंट क्या है, अकॉर्डिंग जो जो डिफ्रेंसिएशन रशियन फॉर्मलिस्ट ने ड्रा की थी वो ज़्यादा रिजिड थी, ज़्यादा उसमें स्ट्रेस दिया गया था, और एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर जाके कहा गया था कि वर्क जो है वो कम्प्लीटली ऑटोनमस है, इसको एक्सटर्नल एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं मतलब जो सेटिंग है या ओवरऑल थोड़ा सा एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम लेवल पर जाके रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता जिस तरह से रशियन फॉर्मलिज्म में किया जाता है। सो फॉर्म सिंपल वर्ड में हम स्ट्रक्चर को कहेंगे, किसी वर्क की अरेंजमेंट को कहेंगे, या जिस तरह उसमें स्टाइलिस्टिक फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं राइटर ने उसको हम कहेंगे। और कंटेंट हम जस्ट रॉ मटेरियल को कहेंगे जो स्टोरी होती है बेसिकली। और ऑब्वियसली जस्ट एज for Russian formalists it's of no importance, just like that for new critics as well. They do not consider biographical and historical and religious aspect. They are not interested in such details. What's their interest? What's the area of interest for new critics? Only the structure, plot, and stylistic features being presented in the text. Origin of new criticism. As you know, the first introduced in 1920 in America by John Q. Ransom, and new criticism was created out of formalism. जो चीज़ हम जानते हैं ऑलरेडी कि फॉर्मलिज्म से ही ये ओरिजिनेटेड है, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये पहले फॉर्मलिज्म थी जो कि रशिया से ओरिजिनेट हुई, और लेटर ऑन अमेरिका से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ये ओरिजिनेट हुई न्यू क्रिटिसिज्म। सो इसको ये वो वाली मूवमेंट है जो कि उसके एक यू कैन से कि आफ्टर इट्स अ सीरीज ऑफ न्यू रशियन फॉर्मलिज्म. So it's more or less the same as well as Russian formalism. The movement derived its name from This is the movement that derived its name from John Q. Ransom's book, The New Criticism. He wrote an essay in 1941, and in which he talked about the things that he wished to exclude and include in literary criticism or literary work. And who was John Q. Ransom? He was a famous educator, scholar, critic, poet, essayist, as well as editor. So he was the person who greatly um, projected the idea of close reading and idea of being impersonal or being more objective instead of being subjective. मीन्स ही फोकस्ड कि बजाय इसके कि कोई राइटर अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन किसी वर्क में प्रेजेंट करे या अपना पर्सनल ट्रेडमार्क दे, उसके बजाय राइटर को चाहिए कि वो इम्पर्सनल रह के उस वर्क से अपनी खुद से उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको अलग रख के, अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को एक तरफ रख के उस वर्क को एक अनबाइस्ड वे में जज करे. This was the main focus of John Q. Ransom. We will discuss the other things that he mentioned in the essay as well. And there was another famous critic, T.S. Eliot, whose name was T.S. Eliot, and he wrote a very famous essay named as Traditional and Individual Talent. And what's the important or what's the role of this essay in criticism? He advocated the idea of objectivity. T.S. Eliot greatly advocated the idea of objectivity. Objectivity here means to say the opposite of subjectivity, means being impersonal, being unbiased, or being completely isolating from the work, the literary work. So this is how Russian formalist new critics advocates objectivity instead of subjectivity. And when he gave this concept of objectivity, uh, it became essential for writers and critics to follow his steps. So there was this was his contribution in new criticism. Now we are going to discuss why this theory emerged, means the theory new criticism. And
here we need to mention that there was an older school of thought in America which focused on writer's intention, that greatly focused on writer intention and historical and cultural context and moralistic bias. As we have already mentioned in previous video, that Russian formalism was came as a reaction against Marxist criticism, जो कि इस चीज़ पे फोकस करता था कि क्लास और कल्चरल और सेटिंग का पता हो ताकि उस वर्क को एनालाइज किया जाए. सिमिलरली न्यू क्रिटिसिज्म से पहले भी अमेरिका में भी कमोबेश यही कंसेप्ट था कि राइटर का बैकग्राउंड, राइटर की इंटेंशन और राइटर की जो उसकी मॉरल बेसिस हैं या मॉरल उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल उस टाइम में जिस वक्त में ये नावल या प्ले लिखा गया है और जो इसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता था. और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने एडवोकेट किया और फिर ये ट्रेंड बन गया ओवरऑल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कि वो इसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको ही फेवर करते थे. Now we are going to discuss the key features of new criticism. First, new formal elements such as rhyme. They focus on the formal elements such as rhyme, meter, setting, and characterization. Russian new critics, they focused on the formal qualities like rhyme, meter, setting, characterization, and plot, जो कि एक वर्क को प्रेजेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं ये चीज़ें. Second, new critics emphasize close reading. So, close reading is something, the term that we have already discussed. It's a way to engage with the text or to pay close attention to the interaction within the text. So, एक टेक्स्ट के अंदर मौजूद ही कंटेंट का आपस में रिलेशन को फाइंड आउट करना और उसी पर मेनली फोकस करना, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोज रीडिंग, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि ये किस वक्त में लिखा गया है या कौन से राइटर ने लिखा गया है या उसका क्या मॉरल या क्या इसकी लिखने की बेस है या राइटर की इंटेंशन है. द न्यू क्रिटिक्स फेवर्ड पोइट्री ओवर लिटरेरी फॉर्म. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पोइट्री जो है रशियन फॉर्मलिस्ट के लिए भी और न्यू क्रिटिक्स के लिए भी ज़्यादा उनकी फोकस का सबब थी. क्योंकि दे बिलीव दैट पोइट्री में लिटरेरीनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोज, क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस का यूजेज भी ज़्यादातर पोइट्स ही करते हैं. सो दैट्स वाई न्यू क्रिटिक्स भी ज़्यादातर पोइट्री पर ही फोकस करते थे और ये एनालिसिस भी ज़्यादातर पोइट्री के पर ही फोकस करते थे. टू सम एक्सटेंट ये प्रोज का भी करते थे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो पोइट्री पर ही होता था. नंबर 4, न्यू क्रिटिसिज्म रिजेक्ट्स रीडर रिस्पॉन्स थेरी. अगर हम सवाल करें कि व्हाट इज़ रीडर रिस्पॉन्स थेरी, क्योंकि ऑटोमेटिकली इट कम्स टू योर माइंड कि अगर इन्होंने इस थेरी को रिजेक्ट किया तो ये थेरी क्या थी. ऑब्वियसली दिस इज़ द थेरी जो कि उनके स्टैंड के अगेंस्ट थी. व्हाट इट सेज it accepts basically the reader's background knowledge and experiences and impact his or her interpretation of the text. They believed that the proponents of reader response theory, they believed that कि राइटर का जो रीडर का जो एक्सपीरियंस है वो इज़ अ काइंड ऑफ द बैग, और जिसमें उसका लाइफ एक्सपीरियंसेस और जितनी भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ के ऊपर वो उसके साथ हमेशा ही रहती है. और जो भी वो समझ रहा है जो वो उस बैग से उसका नॉलेज जो है वो पैरेलली उसको मिल रहा है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे. ऑन द अदर हैंड जो न्यू क्रिटिक्स थे उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि दे बिलीव दैट कि रीडर का जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेवल जो है ये फैक्टर है वो ग्रेटली फोकस करता है, ग्रेटली उसको किसी भी लिटरेरी वर्क को
रीडिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. सो दैट्स वाई दे रिजेक्ट रीडर रिस्पॉन्स थेरी. Number 5, they believed that the work of literature functioned as a self-contained, self-referential as well as an aesthetic object. इसको अगेन हम इस सेंस में ले सकते हैं कि दे बिलीव से सारे इंट्रिंसिक क्वालिटी को फोकस कर रहा है कि एक वर्क लाइक दिस इज़ एन आर्न. अगर हम इसको कीट्स की ग्रेशियन आर्न समझ लें तो इसमें अगर हम न्यू क्रिटिक्स या रशियन फॉर्मलिस्ट की बात करें तो वो इस चीज़ में क्या देखेंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि ये लोग जो इस आर्न के ऊपर इसको इस पर दिखाए हुए हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, या इनके अगर पास अगर म्यूज़िक के कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये किस एरा या किस चीज़ ये कोई उनकी जो एक कस्टम है उसको किस कस्टम को शो कर रहे हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. मीन्स रशियन फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिक्स व्हाट्स देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि किस तरह से इस आर्न में या इस ऑब्जेक्ट में एक उसको प्रेजेंट किया गया है, आर्ट को प्रेजेंट किया गया है. दिस इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर न्यू क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिक्स और रशियन फॉर्मलिस्ट कि उसी की क्वालिटीज़ को एडवोकेट करना, ना कि उसको बाहर की चीज़ों के साथ कंपेयर करना. दे विल अप्रिशिएट कि किस तरह से कलर्स कम्बिनेशन इस्तेमाल किए हुए हैं. दे विल अप्रिशिएट कि किस तरह से जो डिज़ाइन है इसका ओवरऑल वो एक रीडर की सेंस ऑफ साइट को एडवोकेट कर रहा है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट जो कि न्यू क्रिटिक्स का कंसर्न होगा, ना कि इसकी थीम्स को देखना और ना ही इसकी जो ये मैसेज कन्वे कर रहा है इसको देखना. एक्चुअली वो किस चीज़ को एक्सक्लूड करना चाह रहे थे वर्क से, लिटरेरी वर्क से. ये पॉइंट्स, ये वो वाले पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर जो कि जॉन क्यू रैनसम ने अपने ऐसे द न्यू क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म इंक में भी लिखे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ही विश के एक लिटरेरी वर्क में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें बिल्कुल एक्सक्लूड होनी चाहिए वो ये हैं. नंबर 1 ही सेज कि पर्सनल रजिस्ट्रेशन, जिसको हम सिंपल वर्ड में सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं, मींस अपने ख्यालात अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. ही बिलीव कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. एंड सेकंड पैराफ्रेज को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर पैराफ्रेजिंग अगर होगी, अगर रीडर जो है वो जस्ट पैराफ्रेज करेगा, वो एक कॉपी नहीं होगी उसकी, क्योंकि दे बिलीव्ड कि अगर एक ओरिजिनल चीज़ की कॉपी होगी तो वो अपना टेस्ट, अपना जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो खो देगी. थर्ड, हिस्टोरिकल स्टडी. एक रीडर को रीड करते हुए बिल्कुल भी हिस्टोरिकल कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये वर्क किस दौर में लिखा गया और जिस एरा में लिखा गया उस वक्त के क्या सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल सिचुएशन और सिनेरियोज थे. इन चीज़ पर फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंड दे विश कि इस चीज़ को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना चाहिए. मॉरल स्टडीज़ क्योंकि जॉन क्यू रैनसम इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं कि मॉरल्स आर समथिंग जो कि कुछ लोग समझते हैं जो चीज़ उन कुछ लोगों के लिए ठीक होती है, इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अदर्स. और इट मे हैपन कि जो चीज़ दूसरों के लिए गलत होती है वो आपके लिए ठीक हो. सो ही सेज कि मॉरल्स को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं, यही ठीक है यही गलत है. ही बिलीव देयर इज़ अ ग्रे एरिया, और इसी वजह से हम मॉरल्स को किसी भी वर्क में, किसी भी वर्क को हम मॉरलिस्टिक स्टडी नहीं कह सकते. सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि न्यू क्रिटिक स्पेशली जॉन क्यू रैनसम ने अपने ऐसे में एडवोकेट किए कि इन चीज़ों को एक क्रिटिसिज्म में एक्सक्लूड करना चाहिए और इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि न्यू क्रिटिक्स ने अपने वर्क में या जो न्यूली उन्होंने इसको क्वाइंट किया या इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो है द टर्म इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी. इंटेंशनल बहुत सिंपल टर्म्स हैं और व्हाट दे बिलीव
Intentional fallacy means to say कि incorrect practice of analyzing work in context of the author intention, कि author के intention के according एक work को analyze करना. मिसाल के तौर पर अगर हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ की मिसाल ले लें, अगर हम उसकी ये इंटेंशन देखें कि वो क्यों इस वर्क को लिखना चाह रही थी, क्योंकि ये चीज़ें बीइंग अ फीमेल शी एक्सपीरियंस्ड द पेन ऑफ while living in patriotic society, जिसमें पेट्रियार्की में रहते हुए उसने जिस तरह से वो अपनी उसकी स्ट्रगल थी वो उसको एक्सप्रेस करना चाह रही थी, इसलिए उसने इस वर्क को क्रिएट किया और उसमें कुछ कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही अपने जैसा डिपिक्ट किया है जैसे कि उसकी अपने लाइफ थे. अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, न्यू क्रिटिक समझते हैं कि दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. बजाय इसके कि हम राइटर की इंटेंशन को देखें, हमें ये सिर्फ देखना चाहिए कि वर्क जो है उसकी क्या वर्थ है, मीन्स उसके स्टाइलिस्टिक फीचर, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मल क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि राइटर की इंटेंशन को देखना. और सेकंड पॉइंट इफेक्टिव फैलेसी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इट्स इनकरेक्ट प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडर इमोशनल रिस्पॉन्स, कि रीडर का जो एक सडन इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी वर्क के ऊपर, उसको भी इग्नोर करना चाहिए और इसको भी कंसीडर नहीं करना चाहिए रीडिंग के दौरान, क्योंकि दे बिलीव कि अगर एक बहुत एक अब्रप्ट जो चीज़ होती है वो इतना ज़्यादा वो उस अपना वो एक इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करती, और ना ही वो उस लिटरेरी वर्क की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. लिटरेरी वर्क की अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है जब उस पर ख़ास मेहनत और ख़ास एफर्ट पुट किए जाए उसको समझने के लिए, उसके स्टाइल को, उसकी उसके अरेंजमेंट को, या उसके इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ जितनी भी इस वर्क में है उसको समझने की कोशिश की जाए. And now we are going to discuss. I have selected a poem as an example to show you how to apply Russian formalist new critics points or strategies here on any work. इस पोएम में द पोएम दैट्स वेरी फेमस, जो कि ऑब्वियसली सब ने बचपन में पढ़ी होती है, सुनी होती है. Here the poet says, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. So I'm going to just tell you what are the area of interest for new critics. न्यू क्रिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पर देखेंगे, वो देखते ही सबसे पहले जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी को वो ये बताएंगे कि इस पोएम में बजाय इसके कि वो इसके थीम की तरफ जाएं, जो कि ख़ास कोई अहमियत का हामिल थीम नहीं है, जस्ट एक सीन जो कि नाइट का सीन है और उसमें उसकी प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं प्रेजेंट की गई इस पोएम में. लेकिन वो फिर भी इस पोएम में जो चीज़ देखेंगे वो ये कि इस पोएम में तकरीबन 5 स्टैंज़ास यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, और टोटल हर एक इस स्टैंज़ा में 4 वर्सेस हैं. वो ये बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि जो पहली लाइन है, मीन्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार एंड आर, हाई स्काई. हाई स्काई, इससे हमें पता लग रहा है कि जो राइम स्कीम फॉलो अप की गई है वो है ए और बी, और यहाँ पर गॉन अपॉन जिससे हमें लग रहा है कि ये सी है, और लाइट नाइट जिससे हमें पता लग रहा है कि ये डी स्कीम राइम स्कीम यूज़ हो गई हुई है. सो दिस इज़ व्हाट जो कि जो कि न्यू क्रिटिक्स सबसे पहले इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे. इसके अलावा वो ये भी देखेंगे कि कौन सी लाइंस हैं जो कि बार बार इसमें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि तकरीबन हर लाइन हर स्टैंजा में बार बार रिपीट हो रही है, और जो चीज़ बार बार रिपीट हो इसको जो कि एक ख़ास एक जो रिदम क्रिएट करती है, एक म्यूज़िकल टच देती है, मेलोडियस पोएम बन जाती है, जिससे वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे कि पोएट ने इसमें इस वर्क में बेसिकली ये डिवाइस भी यूज़ की गई है जिसे रिफ्रेन कहते हैं, कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना ताकि वो एक ख़ास मेलोडियस इफ़ेक्ट दे. इसके अलावा वो ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कोई लिटरेरी डिवाइसेस का यूजेज है या नहीं है. जैसे कि अगर हम इस पोएम में देखें कि हमें काफ़ी सारी लिटरेरी डिवाइसेस नज़र आती हैं, जैसे कि लाइक अ डायमंड इन द स्काई. ज़ाहिर है कोई चीज़ डायमंड डायरेक्टली तो नहीं है वो स्टार्स, लेकिन
लाइक अ डायमंड, जो कि राइटर ने यहाँ पर एक एनालॉजी और जो कैन से कि सिमिली का इस्तेमाल किया है इसमें, जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं कि ये स्टेंजा नंबर 4 में हेयर इज रिटन इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप फॉर यू नेवर शट योर आइज। अब यहाँ पर स्टार्स को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ दी गई हैं, और जहाँ जिससे वो पता कि हम वो क्या राइटर कह रहे हैं कि वो पीपिंग कर रहा है, पीप कर रहा है, और मीन्स वो उन उसको देख रहा है थ्रू देयर कर्टन, और उस और जो है वो ये भी कह रहा है कि फॉर यू नेवर शट योर आइज, कि वो अपनी आंखें भी बंद नहीं करता। सो दिस इज़ व्हाट के एक बेजान चीज़ को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ देना, विच इज़ कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। सो दिस इज़ हाउ कि एक वर्क को इसकी आर्टफुलनेस को, या उसकी उसकी वंडरफुलनेस को, उसकी यूनिकनेस को न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं, और इसी चीज़ को वो अपने वर्क्स में भी, और वो चाहते हैं कि जितने भी राइटर्स हैं वो इसी चीज़ को फॉलो अप करें। सो आई थिंक यू पीपल हैव गॉट एन आइडिया व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म और किस तरह से ये एनालिसिस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।